Hello. Hello. Hi. Hi. Is everybody there? No, they'll join. They'll join. Okay. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Where is Mansi? Wait. We shall wait for her. Yeah. Hello. Yeah. Yeah, she came. So, good evening. First, we'll take the photos. So, Yeah. everybody on the camera. Mansi, you were sleeping here?
Done? Yeah, done. One second. Okay. Okay, so today, one second. Trupti, there is an echo in your voice. Yeah, one. Yeah, so everybody can hear me now? Am I clear? Hello. Yeah, we can hear you. Hello? Yeah, I'm just starting. 2 minutes. Yeah. Okay. So today I'm going to discuss about a case which is related to a property matter which I've already mailed to you. And as I said yesterday, it is a little confusing also for me. But let's discuss it so that we can come to a conclusion and we'll find out the answer also for it. So to start with, this case name is Bikram Chatterjee and others versus Union of India. So the facts of the case is like in 2011 in Noida and Greater Noida, varied assets come from housings were started. Within the varied comes the Amrapali cluster of firm projected to construct roughly around 42,000 flats. So this case is exactly actually about a builder whose name is Amrapali Group and it is situated in Noida. Okay, so it promised the home buyers that he started a new project. Okay, and on that project he promised to around have 42,000 flats in their own planned whatever. Okay, various brochures were printed and it had been assured that the delivery of the possession shall be created in 36 months. Okay, hello, am I audible? Shall I continue? Yes, continue. In 36 months. And other world-class facilities were also promised. Various home buyers booked their apartments during the period 2010 to 2014. The buyers signed the standard form of the allotment cum flat buyer agreement, and even after payment of 40 to 100% of the total consideration, they faced with the threat of forfeiture of huge booking amount. The buyer invested their life savings and some of them had obtained the loan from the bank. Most of the buyers had made the payment to the extent of about 50% to 100%, abiding by the payment schedule. Under clause 14 of the agreement, in the agreement which they made, okay, the builder authorized itself to finance loan from any financial institution by way of mortgage, charge, security of receivables of lands and flats, and the allottee will have no objection in it. So, to explain the first paragraph, there was the land we have promised. The land was sectioned by the authorities, but the authorities also had one point. They had taken this law. Nowadays they take there are lease lands. You must be knowing. Those lease lands were taken by this from the farmers by the authorities. Okay, now the authorities had the control over that lease land, and that lease land was taken. They had given it to Amrapali Group, and Amrapali Group had taken this land to build this construction.
You must, if you are aware, nowadays in most of the in Bombay also there are around the construction which is going on in some places. There are the authorities have their lease land and they give it to this particular construction builders or the company for 99 years lease. You must have heard that. Yes. Then for Yeah. 999 years lease. So this particular land was on lease. And the secondly, Amrapali Group had also taken those flats, those lease land, and then it had sold it to the sold it to the to shot to the buyer. Sold you can say be under construction, and the home buyers had purchased it, and they had also made the payment. And in on the on secondly the last line which it says the agreement, the builder also authorized itself to finance loan from the financial institution. कुछ लोग कुछ ग्रुप्स रहते हैं ना कि हम लोग ये भी करेंगे, आप बाय कर लो, हम फाइनेंस भी करके देंगे प्रॉपर ये जगह का फ्लैट का, वैसे भी रहता है ना। हेलो। Yeah. हाँ, तो Yes. वो बायर्स ने बाय भी कर दिया, लेकिन जिसको अफोर्ड नहीं हो रहा था उन्होंने लोन पे भी ले लिया उनसे और लोन भी किसने फाइनेंस किया? इसने ही आम्रपाली ग्रुप के उनके टाई अप्स थे बैंक के साथ, तो उसने वो भी कर दिया। So continuing, clause 15 also authorized the builder to keep full authority over the flat, depriving the allottees of any lien of interest despite payment of the entire amount. The builder under clause 19 was obliged to complete the flat of Amrapali Sanatorium Park Private Limited within 30 months from the date of commencement of the excavation, that is the signing of the agreement, which may vary from plus minus 6 months. Under clause 19, the builder fixed a paltry sum of rupees 5 per square feet per if it gets delayed, वो ना उसने वो भी डाल दिया कि मेरे से अगर डील लेट हो गया तो मैं 5 पर स्क्वायर फीट वो भी दे दूंगा आपको, which would include all damages, compensation, claim for delayed possession. The dreams of the buyers of obtaining houses were given serious jolt when Amrapali Silicon Private Limited, Amrapali Group you can say, they were found in a serious breach of their obligation to deliver the flats within 36 months. तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो नहीं कर पाए। ओके, सो दे डिड नॉट पे द अमाउंट बोथ टू द, मतलब उन्होंने जिससे अथॉरिटी से परमिशन ली थी उनको भी पेमेंट नहीं किया, एंड जो ने पैसा लगाया था उनको भी पेमेंट नहीं किया। Several revised dates of possessions were fixed unilaterally, but they failed to deliver the flat और home buyers को भी उन्होंने flat delivery भी नहीं किया। So they are into all these serious obligations. The Amrapali Group had failed to comply with its obligations under subvention scheme, the tenure of which was approved by bank financial institutions. Okay, अभी क्या हुआ? The builder had failed to comply first of all of the above mentioned scheme over the buyer, making the payment of EMI to the bank को EMI जो देने का था वो लॉस हो गया, प्लस ये कस्टमर्स लोग से भी उठाया तो उनको उनको डबल लॉस हो गया, क्योंकि वो तो दे हैड टू पे द इंटरेस्ट टू द बैंक, क्योंकि वो उन्होंने तो लोन पे लिया था कुछ कुछ फ्लैट ओनर्स ने, बराबर। हेलो। Yes. Yes. हाँ, तो उनको तो फ्लैट भी नहीं मिल रहा है, प्लस उनको देना ही पड़ रहा है, देना पड़ रहा है क्या? सो देर इज अ फाइनेंशियल, देयर वाज अ लॉस टू देम द होम बायर्स। अभी आगे चल के some of the consumer approach to the consumer court, that is National Consumer Dispute Redressal Commission, by filing consumer complaint, okay, of under Consumer Protection Act. The petition filed by 107 home buyers led by Bikram Chatterjee जिसने ये केस फाइल किया has sought enforcement of their fundamental rights be under section 21 under article 21, rights that have been seriously abrogated by the provision of insolvency and code 2016. They want the court to be held ultra virus to the constitution as being violate of fundamental rights, right to equality, right to life guarantee under article 14 and 21b. The petition also prayed for quashing of NCLT September 4 order that appointment of insolvency resolution professional to take over the company and order a stay on all the court proceedings against the company, including those pending before the consumer court, till the corporate insolvency resolution process is on.
Besides, they have sought a direction to restrain और कई कई चार्जेस चलते गए, मतलब वो होम बायर्स को का भी था। देन द बैंक ऑफ बड़ौदा उन्होंने भी फाइल किया, जिनसे उन्होंने लोन उठाया था, उन्होंने भी फाइल किया कि उनके पैसे, उनका पैसा भी नहीं मिल रहा है। प्लस प्लस होम बायर्स ने इंसॉल्वेंसी के अंडर फाइल किया। सो तीन चार जन ने उनके खिलाफ, किसने, अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ ये सारा फाइल किया। सो हैव यू अंडरस्टूड द फैक्ट? Yes. Yes. Now the issue was whether, now issues we can discuss. Issue was whether the validity of the charge being claimed by the authority over the project being developed by Amrapali Group, whether it was valid. Okay. Secondly, the validity of charge being claimed by the bank over the project being developed by Amrapali Group. Okay. Third issue was whether the registration under the RERA Act, जो RERA Act निकला था, obtained by Amrapali Group under the real estate, okay, was liable to be cancelled, and what relief can be provided to the home buyer in the light of the present facts and circumstances. So we have to discuss about these issues. Now, judgment आ गया है, लेकिन judgment will I'll let you know later, but we can discuss on this case now. So what is the first question is whether the validity of the charge being claimed by the authorities over the project being developed by Amrapali Group. Charges should not be levied. Why? Because this is a open and shut case. There are things कि जो buyer, जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो बिल्डर था, उसने उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो तो कंप्लीट नहीं किया है। उसने लिख के दिया था, ही वॉज कॉन्ट्रैक्टेड, ही मेड एन एग्रीमेंट एंड ही फेल्ड टू डू सो। दिस इज अ क्लियर कट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, breach of agreement. So the charges should not be levied. Okay. As I remember this case, I think this was the same case where Dhoni was the brand ambassador, and after many complaints, he was made to leave this brand. And in this case, I think that the charges which were levied by the builder, authorities, and banks, all of them, they should have been checked, and whatever were the valid charges, only that should be levied. बिकॉज ये बिल्डर जब बनाता है तो ये बिल्डर और बैंक्स कोई भी टाइप के चार्जेस लगा देते हैं, और जो ये होम बायर है उसको वो भरना ही पड़ता है। क्यों? बिकॉज घर चाहिए, इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सो पीपल विल डू वॉट एवर दे कैन डू फॉर देयर हाउस। राइट। तो और एक चीज इसमें दिखाई देती है कि अगर ये लैंड इस लीज पे थी, अगर वो लीज कुछ खत्म भी होने वाला था शायद, तो उन्होंने अम्रपाली ग्रुप को दिया कैसे? इसमें और एक पॉइंट है, जैसे मैंने वो लीज का डिस्कस किया, तो 99 इयर्स का जो लीज इन्होंने लिया था, सो फर्दर दे हैव गिवन अ कंटेंशन कि अगर वो अथॉरिटी को दे रहे हैं, और अथॉरिटी, चलो लीज का तो मान लो छोड़ दिया, लेकिन अगर द पेमेंट भी अगर कोई ये नहीं किया है अथॉरिटी को, फिर भी अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी उनको दिया कैसे बिल्ड अप करने के लिए? हाँ, अगर पेमेंट हुआ ही नहीं है तो सब लीज कैसे कर सकते हैं? राइट, कैसे कर सकते हैं? और सेकेंडली उन्होंने एक्सकावेशन इसका सबका सीसी, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट सीसी हैज टू बी ऑब्टेन, एंड प्लिंथ वाइज जैसे जैसे बिल्ड होते जाता है, वैसे दे हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अथॉरिटी ने पहले कैसे दिया। Second question is the validity on charge being claimed by bank over the project being developed by the Amrapali. तो क्या बैंक भी कर सकती है? अगर बैंक कर सकती है तो बैंक ने उनको ये कैसे फाइनेंस कैसे? हाँ, जब कोई घर बैंक ने चेक नहीं किया, लोन पे वगैरह जब घर दिया जाता है, बैंक्स आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, सब कुछ क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे बैंक से भी मिस्टेक हो गई, उन्होंने ये सब देखा ही नहीं कि हाँ ऑलरेडी ये लोग सब लीज पे दे रहे हैं, उनको वहीं पे रोकना चाहिए था, वहीं पे रोकना। बिकॉज अमरपाली ग्रुप शायद बड़ा होगा एंड उसकी वजह से बैंक ने दे दिया होगा उनको। हाँ, उनका भी सेटिंग रहता है कि लाइक करा दो लोन, और हम तुम्हें रिटर्न में दे देंगे बेनिफिट जो भी बैंक को जो मैनेजर रहता है उसको अपना अपना मिल जाता है और वो पास करा देता है। तो सब उनको लोन टेबल मिल गया होगा, ओके, और उसके वजह से उन्होंने वापस करप्शन का जैसे ही हो गया, तो
कुछ अंडर द टेबल खिला पिला दिया होगा, और आजकल ये अथॉरिटीज तो पहले खाते हैं कि अपने यहाँ पे भी नहीं है। तो ये वो बिल्डर लाइन सबसे उनको उनके लिए जो वो लाइन है जहाँ पे उन्होंने इतने सालों से कमाया, अभी जाके थोड़ा रिसेशन पीरियड से थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उन लोग परमिशन थोड़ा नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ मतलब लॉज थोड़े चेंज हो गए ये वो बोल, लेकिन पहले से इतने सालों से सबसे ज्यादा कमाई ये बिल्डर लाइन में ही थी। करेक्ट। अगर वो 99 इयर्स का लीज था पहले से, और वो जो लैंड था वो फार्मर्स का था, Yes. तो ये जो चीज है ये डिस्क्लोज करना चाहिए था बिल्डर नहीं, पहले तो वो फॉल्ट में है। राइट। बिल्डर ने ये बायर्स को और बैंक को दोनों को डिस्क्लोज करना चाहिए था। सो फ्रॉम द बिल्डर ये चीटिंग हुआ है ये दोनों के साथ। अब ये देखना पड़ेगा वेदर द बैंक इज इन्वॉल्व और नॉट। अभी इसमें क्या लगता है, हम लोग जब एग्रीमेंट्स बनाते हैं, व्हेन वी ब्रेक अ सेल एग्रीमेंट आल्सो, वो देर अगर लीज पे भी लैंड हो ना, वी हैव टू स्पेसिफाई ओके कि दिस लैंड इज ऑन लीज एंड फॉर सो इयर्स एंड इट इज टेकन ऑन लीज, तो ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। इफ यू एनीबडी ऑफ यू मस्ट बी सीन अ सेल एग्रीमेंट, लेकिन मैंने कई सारे सेल एग्रीमेंट्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम लाइन, तो उनको स्पेसिफाई कर। तो होम बायर तो बेचारे लेमैन के जैसे रहते हैं, कुछ कुछ सब लोग को इतनी नॉलेज नहीं रहता है। उन लोग क्या देखते हैं, हम लोग जब घर खरीदने का डू नॉट नो क्या, बिकॉज इट इज दिस इज सैंक्शन बाय द लॉयर, राइट। जो क्या बोलते हैं तो एक जो लॉयर सैंक्शन करके देता है उसको टाइटल, so in that title certificate टाइटल सर्टिफिकेट। हेलो, किसी के यहाँ पे देयर इज अ डिस्टरबेंस। किसी के यहाँ पे आवाज आ रहा है, किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है, बच्चे का कोई। हाँ, now I'm clean. Now can you hear me? Yes. तो क्या तो इसमें टाइटल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। So anybody knows about seen the title certificate? Yes, I have seen तो in my SARFAISI case. Yes, so in that title certificate is actually given by the lawyers also. हम लोग lawyers जो रहते हैं, तो वो title certificate में करते वक्त भी lawyers लोग भी उसमें involved रहते हैं। They also उनको title clear करके देना पड़ता है, तब जाके वो अंदर दे सकते हैं। तो ये सब मैनेज हो जाता है बड़ा बिल्डर से, ओके। लेकिन अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी है देने के वक्त या ये सब करते वक्त या फिर बैंक लेने देते वक्त, दे देमसेल्फ इफ अगर करप्टेड है, तो फिर आगे होम बायर्स को तो बेचारे लोग तो पागल बाई करते जिसको ये सब चीज का नॉलेज नहीं है, ओके। सो हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन वी गो टू बाय अ फ्लैट, वी सी हाँ बिल्डिंग अच्छा है, नजदीक है, फ्लैट का एरिया अच्छा है, व्यू अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी दी है, वी ओनली सी दीज पार्ट्स, राइट। Yeah, so on the और ये सब देखने के बाद we get attracted sort of towards the building कि हाँ बहुत अच्छा है when we like it, but actual जो रहता है वो papers में रहता है which we do not see. So if this awareness should be there, to my opinion, अगर ये अवेयरनेस पता है मुझे, सबको नहीं हो सकता, बट अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। फर्स्ट पीपल बिल्डर्स इतना ये पागल बनाते थे कि विदाउट ओसी भी सब चला लेते थे, यू नो। लेकिन ओसी का सबको मालूम पड़ गया कि व्हाट आर इज प्रॉस एंड कॉन्स, कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड बाइंग फ्लैट्स ओनली आफ्टर ओसी हैज बीन रिसीव्ड। सो जस्ट टू मेक यू पीपल ऑल्सो अवेयर, आप लोग को नॉलेज है कि नहीं ये चीज का, मुझे पता नहीं है, पता है क्या ये सब चीज? नहीं, सीसीओसी तक तो पता था, टाइटल भी क्लियर होना चाहिए, बट बहुत कुछ चीजें रहती है कि मतलब जो सोसाइटी है वो भी जो घर है वो सोसाइटी के नाम पे है या फिर बिल्डर के नाम पे है, कन्वेंस हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं, वो सब लेटर। ये जो कन्वेंस वगैरह, मतलब फर्स्ट अगर हम लोग इसमें जाते हैं, कोई बिल्डर के पास से डायरेक्टली हम लोग बाय करने जाते हैं फ्लैट, सो वी हैव टू सी सर्टेन पॉइंट्स की वैसे पहले तो सीसी मिला है क्या, सीसी मिला है तो ओसी होना ही चाहिए। ओसी इज द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट व्हिच इज गिव्स राइट
to the home buyer to go and stay in that flat. अगर OC नहीं मिला है तो he will never get the property tax bill on his name. ओके, प्रॉपर्टी उनके नाम पे कभी नहीं चढ़ी जाएगी, तो उनके नाम पे बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए ओसी मिलना बहुत जरूरी है। ओके, दिस नहीं तो वो इलीगल माना जाता है और तोड़ दिया जाता है। इवन पानी जो आता है, तो पानी सप्लाई जो आता है, अगर ओसी नहीं है तो डबल चार्जेस पे करने पड़ते हैं देन द नॉर्मल रेट अपने 4 रुपया 50 पैसे तक का रहता है, लेकिन अगर ओसी नहीं है तो 25 रुपया। अगर आप कोई आपके यहाँ पे ओसी मिला बिल्डिंग, अभी देखो बाद में कि ओसी है तो बिल्डिंग वाटर पर चार्जेस का रेट भी अलग रहता है। ओके, नहीं तो फिर ये लोग हायर इस पे चार्ज करते हैं ओसी नहीं है तो। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी टेकन इन। और एक बार सोसाइटी बन गई तो सोसाइटी बनने के लिए भी ये सब चीजें लगती है। ओके, अगर कोई विदाउट ओसी भी आजकल बनती है, ऐसी नहीं है नहीं है, बट लेकिन कन्वेंस होना चाहिए। कन्वेंस इज व्हाट? कन्वेंस मतलब वो बिल्डर ने अपना राइट हटा के तुम लोग का बिल्डिंग जो फ्लैट ओनर्स है उनके नाम पे चढ़ा दिया। अगर एक बार कन्वेंस डीड बन गया तो ये वो दैट कन्वेंस डीड आप लेके जाके प्रॉपर्टी आपने इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और म्यूनिसिपल अथॉरिटी को दिखा के फिर ही वो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल पे जो नाम ऊपर रहता है ना, वो तभी नाम चेंज होता है, नहीं तो फिर तब तक बिल्डर के नाम पे ही रहता है। सो कन्वेंसिंग अगर जब तक नहीं होता है तब तक बिल्डर के नाम सोसाइटी के नाम पे ये नहीं होता है। सो टू मेक दैट ऑल्सो देर इज अगेन उसमें भी जुगाड़ लगता है, बहुत कुछ पैसा खाया जाता है, वो नाम अथॉरिटी भी लेती है, लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी है व्हेन यू गो टू बाय और परचेज अ फ्लैट। जस्ट आई एम ऑल्सो मेकिंग यू अवेयर, तो ये चल के आप लोग को भी कभी फ्लैट खरीदने जाओगे तो आपको एक अवेयरनेस हो जाएगा, क्योंकि ओसी के बगैर पहले तो लो मत फ्लैट, और अगर लेते भी हो तो एग्रीमेंट वो जो देता है किसी वकील को जाके से पूरा चेक करवाओ कि इसका टाइटल क्लियर है क्या। बहुत सारी चीजें रहते हैं व्हेन वी डोंट सी व्हिच वी कम अक्रॉस लेटर। और फिर क्या होता है मालूम है, एक बार हम लोग रहने के लिए चले गए ना तो बिल्डर है ना उसका बहुत फायदा लेता है। ओके, बिल्डर छोड़ देता है, आधे में छोड़ देता है, कंस्ट्रक्शन छोड़ देता है, पानी का लाइन छोड़ देता है, फिर बिल्डर और इस सोसाइटी में वो चक्कर चलते रहते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी सोसाइटी मैटर्स केस जो रहते हैं ना, सोसाइटी मैटर्स के केस जो रहते हैं जो बिल्डर के साथ, वो यही सब छोटे छोटे चीज में रहते हैं, क्योंकि उनका यही लिटिगेशन चलते रहता है, क्योंकि बिल्डर ने हम लोग को प्रॉपर ओसी नहीं दिया, प्रॉपर जो मेंशन किया था ये करके देंगे, कुछ नहीं दिया। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट। सो ये वाला केस में भी ऐसे ही हुआ। सो इफ फर्दर मैं आपको 2-3 पॉइंट जो कंटेंशंस भी है वो सुनना चाहेंगे आप लोग? यस। हाँ, तो मैं थोड़ा पढ़ती हूँ तो यू विल आल्सो बी क्लियर, और लास्ट में मैं जजमेंट बताती हूँ। ओके, नाउ कंटेंशन, पहले तो रूल समझ लो जो जिसके अंडर ये सब हम लोग फाइट कर सकते हैं। ओके, अंडर ये जो पर्टिकुलर केस है अपना 2 ही क्वेश्चंस हुआ है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस का आंसर्स अभी तक देने बाकी है। थर्ड इज whether the registration of RERA obtained by the Amrapali Group under the real estate, okay, was liable to be cancelled, okay, and what relief can be provided to the home buyers in the light of present facts and circumstances. So before answering these 2 questions, I'll just read the contention so that you can be clear कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। Is it okay for you? Yes. Yes. Okay. Now, rules of law that apply. First of all, Section 12 in the Consumer Protection Act. ये एक रूल है जिसमें one or more consumers, where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district forum on behalf of, like बहुत सारे consumers हो उसमें involved, तो इसके अंडर हम लोग फाइट कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ओके, ऐसे केस में। हाँ, सेकेंडली इज सेक्शन 7 इन द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी कुछ जगह पे ऐसे प्रोविजंस करके रखे हैं। अभी सेक्शन 7 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एक्ट, इफ अ डेटा कमिट्स एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी and the insolvent petition may be presented either by a creditor or by a debtor, and the court may on such petition make an order then adjudicating him as an insolvent, that he is liable.
म्हणजे वो पर्सन अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेअर हो जाता है तो वो देन ऑल्सो ही इज अ लायबल टूवर्ड्स द होम बायर. थर्ड इज अगेंस्ट सॉल्वेंट प्रोविंशियल सॉल्वेंसी एक्ट. उसमें भी सेक्शन 53 है जो इट इज सिमिलर टू सेक्शन 7 ओनली. तो इसके अंडर हम लोग फाइट कर सकते हैं. ओके वो सेक्शन 53 थोड़ा बड़ा है लेकिन अब बाद में पढ़ लेना. बट अंडर सेक्शन 3 इन द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट उसमें भी हम लोग यही कर सकते हैं. देन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 21 तो सबको पता है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन. Yes. दोनों चीज है. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedures established by law. So these are all the rights we can rule of law which we can fight for such particular cases. Then now the contentions, I'll read the contentions on behalf of the home buyers. Home buyers क्या contend करना चाहते थे? What were they fighting for? First of all, they said the due of authority cannot be treated at par with the dues of the home buyers. बराबर. Yes, right. Authority का जो ड्यू है यू कैनॉट कंपेयर विद द होम बायर. व्हाई? बिकॉज होम बायर प्रायोरिटी भी लेना पड़ेगा आपको. अथॉरिटी तो चलती ही रहेगी. हम लोग का क्या, हम लोग ने इतना इन्वेस्ट किया है सब लोग ने. ओके. होम बायर विच द चार्ज ऑफ द मनी पेड बाय द होम बायर should be treated because of his highest priority. Right? Secondly, they contended the authorities were measures susceptible to issue occupation certificate, completion certificate for the assorted building that are completed and square measures being colonized by the occupiers, despite the very fact that land due of the authorities has been paid by Amrapali customers. तो ओसी तो मिला नहीं है, ओसीसीसी मिला नहीं है. तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज अथॉरिटी ने कैसे अम्रपाली क्लस्टर को परमिशन दिया? दैट्स व्हाट डिस्कस किया कि वो उनका भी वही कंटेंशन था. Then the authorities are liberal in their approach and didn't take any rigorous action against the Amrapali cluster despite the continuance of assorted infraction. ये सब infraction जो था के बावजूद भी उन्होंने परमिशन दे दिया. मीन्स दे वर नॉट they did not take any rigorous action against it. Why? Together with non-payment of premium installment stipulated below, the lease deed का related जो premiums भी उनके बचते थे वो भी नहीं दिए थे. Despite the very fact that the almost all quantity had been realized. होम बायर ने तो बेचारे ने ऑल सब पैसा दे दिया देख के. ओके. लेकिन वो पैसा होम बायर से जो लिया वो सामने वाले को अथॉरिटी को भी नहीं दिया. तो कहाँ यूटिलाइज किया? राइट. Yes. पैसा तो ले लिया तो हम लोग फ्लैट के नाम पे, प्लस डबल लॉस ये क्या उन लोग को फाइनेंशियली ये भी ले दिया. क्या दे दिया? लोन भी चढ़ा दिया उनके ऊपर. ओके. तो वो उनका भी मतलब उनका भी पैसा उन लोगों ने ले लिया जो बैंक से लोन लिया, प्लस जो होम बायर्स बेचारे सेविंग्स थे उनका भी ले लिया. तो लेकिन अथॉरिटी को पे नहीं किया है, मतलब किसी को पे नहीं किया है. तो फिर कहाँ गया ये सब पैसा? where did it go? और हम लोग को तो उन्होंने पूरा फ्लैट भी अपने पोजेशन दिया, टैक्स भी कंप्लीट नहीं किया. तो all these factors were there. The last contention was, नहीं लास्ट नहीं है, भी है और the public trust being Article 21 of the Constitution. Article 21 का भी उन्होंने भी डाल दिया. ओके. Then corrective actions against Amrapali cluster. The authority has acted in inconvenience with the Amrapali cluster and so broken the general public trust. Okay. That not solely the authorities, however, the banks were additionally negligent है. जैसे वो हम लोग ने अभी किया तो वो ही होम बायर्स ने भी डाला, वो भी नेग्लिजेंट है. उन्होंने कैसे लोन दे दिया. ओके. लोन पे सारा प्रोजेक्ट सारे चल रहे थे वो भी कैसे दे दिए. ओके. जब उनके पास एक्चुअल वैलिडिटी ही नहीं थी ये लोन प्रोवाइड करने के लिए, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे. द बैंक वंस the loans anticipate all their responsibility acted in convenience with the Amrapali by turning blind eye to the criminal diversion of the funds being committed by the Amrapali. they बैंक से लेने के बावजूद भी वो
आम्रपाली ग्रुप ने हेलो। हेलो या आवाज जा रही है बीच बीच में। तुम्हारे पीछे कुछ अजान चल रही है क्या? मेरे 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 अच्छा, नहीं नहीं मेरे इधर तो नहीं है। एक्चुअली मैं दूसरी जगह आई हूँ तो वहां पे अजान हो रही है। ओके ओके ओके, तो ये आर यू एम आई ऑडिबल सब लोग? यस 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 ओके, समझ रहा है ना, मतलब आई शैल आई कंटिन्यू ना? यस यस। यस। ओके, मतलब ये सब पॉइंट्स थे। देन फर्दर द बैंक वंस अनेबलिंग ऑफ द लोन एंड दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बैंक भी ब्लाइंड हो गई एंड वो बैंक ने भी जो पैसा अम्रपाली ग्रुप ने जो लिया वो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है और मालूम होने के बावजूद भी दे डिड नॉट टेक एक्शन। बैंक को भी कभी कभी पता चलता है ना कहाँ पे, क्योंकि शायद में भी उनके पास भी वही अकाउंट रहेगा ना, तो वो डाइवर्जेंस की एंट्री तो पड़ती है ना डेबिट क्रेडिट की, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। हेलो, डेबिट बैंक में डेबिट क्रेडिट होता है, तो वो उनको मालूम है ये पैसा अम्रपाली ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है उनकी एंट्रीज भी कई कई जगह पे पता चलती है। तो वो भी बैंक भी ब्लाइंड रही एंड द मॉर्गेज डीड इश्यूड बिटवीन द बैंक एंड द अम्रपाली कस्टमर डोंट हैव एनी सैंक्शन बिलो नो लॉ owing to the very facts that they were premised under conditional NOC by the authorities that clearly declared that NOC is valid on condition that the payment of premium and lease rent has been done. The RERA registration of the Amrapali cluster over the authority comes in suspectable to be of owing to the continuing and uninterrupted delay by the Amrapali cluster in finishing the project. रेरा में रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग रेरा रजिस्ट्रेशन, मालूम है ना सबको? हाँ हाँ। आजकल अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वी हैव टू टेक अ परमिशन फॉर रेरा फ्रॉम रेरा रजिस्ट्रेशन। वो होने के बाद ही आप लोग कमेंस कर सकते हो। तो उसमें भी उसमें इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन है प्रोजेक्ट लोगों को कि किसी एक एक के बस की वो काम नहीं है, उसमें भी काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। और वो होने के बावजूद बाद उसमें बताना भी पड़ता है कि कभी कमेंस हुआ एंड व्हाट विल बी द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी डालना पड़ता है उसमें, तो ही वो प्रोजेक्ट को ये मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है। सो फिर ये सब होने के बावजूद भी होम बायर्स आर बीन रिफ्रेंड, यू कैन से कि उनको लॉस है। सो इन दिस केस क्या होगा आप लोग का, व्हाट डू ओपिनियन यू हैव? Yeah, so there are many things came into my mind कि चलो अगर फेयर एक जजमेंट देना है हम लोगों को, तो ये तो हमको पता है कि ये सब किया कराया आदमी तो ये बिल्डर ही है राइट फर्स्ट पेज पे। पर अगर हम लोग बिल्डर का रेरा लाइसेंस कैंसिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते, वो बोलेगा ठीक है यार मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो, मेरे को 1 साल जेल में डाल दो, मैं आराम से आऊंगा और पैसे भी खा जाऊंगा, वो तो बच जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। जो राइट डिप्राइव्ड हुआ है, जो लोग जो होम बायर्स थे उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और उनका जो राइट है वो उनका मिलना चाहिए फर्स्ट थिंग। और ये जो बिल्डिंग है उनका जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा होना चाहिए विद इन द स्टैपुलेटेड टाइम। राइट अभी ठीक है। और सेकेंड थिंग, अभी ये जो बैंक्स है जिन्होंने लोन इनका सैंक्शन करवा दिया है और जो भी पर्सन इन फॉल्ट था, सपोज कोई मैनेजर रहेगा उसने पैसा खाया है, ये तो सेपरेट एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। राइट और जो बैंक ने इनके ऊपर केसेस लगाए हुए हैं इंसॉल्वेंसी के और एनसीएलटी के, तो इसके ऊपर टेम्पररी स्टे बैठना चाहिए। और जो आदमी था, जो मैनेजर था, हु हैड ब्लाइंडली सैंक्शन दीज लोन डॉक्यूमेंट्स, ही शुड बी चार्ज्ड। और इसका जो भी ये है एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए हैं, टैक्स बैठा हुआ है, EMIs बैठे हुए एक्स्ट्रा, दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द बिल्डर। Yes. So she rightly said, Rajeshri, all these points lead to only one thing, that all of these authorities which were there, bank, the authority, PMC, and the third person, the builder itself, they all had a different intention to have a fraud, a criminal act against the
not you can cannot say criminal act, but at the point of this you can understand that there can be a criminal act also in this. या इट इज चीटिंग, ये होते हैं, मोफा लग जाता है चीटिंग ऐसे एंड लोगों पे। फ्रॉडिंग। Yes, so ये सब हाँ चीज़ it is definitely you can call कि this there had वो fraud करना ही चाहता था, उनका intention लोगों के पैसे लेकर हथलाना ही था। ये हाँ और कई सारे बिल्डिंग्स अभी बॉम्बे में भी इफ यू व्हेन यू गो टू सम प्लेसेस कहीं पर भी आप देखोगे पत्रे लगाए रहते हैं, लेकिन अंदर का काम रुका रहता है। अभी मेरे इधर ही पालिया में एक बिल्डिंग है, ओके, वो उसने चालू किया काफी काफी टाइम पहले, वो बिल्डिंग के लोगों को खाली करवाया, ओके, उनको टेम्पररी उन्होंने कुछ लोगों ने उनके पैसे से कई पे घर ले लिया क्योंकि बिल्डर को वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर कोई डेवलपमेंट में जाता है, रीडेवलपमेंट के केस में खास करके मैं बोल रही हूँ, अगर इफ योर बिल्डिंग इज गोइंग टुमारो इन रीडेवलपमेंट, तो जो बिल्डर लेता है तो वो बिल्डर को आपको एक सेकेंड होम प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, अगर अगर होम नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सब्सटेंशियल रेंट रेंट पे करना पड़ता है आपको, तो वो आप कहीं और जाके रह सके। ओके, वहाँ का रेंट या वो लोग पे करना पड़ता है। तो ये सब उसने किया, लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो बिल्डर खुद ही वो बिल्डिंग फ्रॉड क्या, वो बेचारे उसमें तो डॉक्टर्स विक्टर्स सब लोग थे। इट वाज अ कमर्शियल ये भी था और ऊपर रेसिडेंशियल था, लेकिन वो तोड़ के कितना साल हो गया, उसके बाद बाजू वाली बिल्डिंग बन भी गई, लेकिन इसकी बिल्डिंग अभी तक वैसी हो गई, उसके ब्रिक्स जो लगे थे वो भी काले पड़ गए। पता ये चला कि वो बिल्डर के ऊपर रेड गिर गया और उसको इसमें जेल में डाल दिया 7 साल के लिए, तो बिल्डिंग भी रखड़ गई। ओके, और बेचारे लोगों को भी कुछ मिला नहीं रहने को। तो हु इज एट लॉस? हु लॉस इज द बेचारा कंज्यूमर। तो यहाँ पर भी सेम केस है कि लॉस किसका है? कंज्यूमर। तो हाई प्रायोरिटी में कौन दिख रहा है आप लोग को? होम बायर दिख रहा है, अथॉरिटी दिख रहा है कि बैंक दिख रहा है? होम बायर। होम बायर्स। होम बायर। पहली बात तो ये अथॉरिटी है, फर्स्ट हाँ ऑफ ऑल। लोग तो चीटर तो बैठे हुए हैं, वी नो कि जहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, व्हेन देयर इज अ लॉ देयर आर पीपल हु कैन ब्रेक द लॉ, so there is someone to keep a check on this। तो ये कौन है, ये लोग कौन है चेक बैठने वाले? ये सब अथॉरिटी है अपना। जब देयर इज अ पर्सन हु सैंक्शन दिस डॉक्यूमेंट्स, वो जो कलेक्टर रहता है, कलेक्टर के अंडर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड्स रहता है, वो ये सब डॉक्यूमेंट जो फेरफार रहता है, किसके नाम से किसके नाम पे चढ़ा है डॉक्यूमेंट, टाइटल क्या है उसका, जब वो सब चेक करता है तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। करेक्ट। तो ये जो कलेक्टर है, ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड्स है, ये दोनों को पार्टी बनाना चाहिए। व्हाई ही हैज निग्लेक्टेड, उसने जो ब्लाइंड गेम खेल के ये लोगों का चीटिंग होते हुए देखा, और जब वो 99 इयर्स का लीज पे लिया हुआ है, जो गरीब फार्मर्स का बेचारे लोगों का जो खेती है उनके बारे में क्या, उनको भी तो उसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए, एंड दैट ऑल कंपेंसेशन टू बी गिवन बाय बिल्डर ओनली। और अगर बिल्डर बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया और सेल भी नहीं किया, सो बिल्डर को एक अंडर राइटिंग में एक बॉन्ड लिखवा के लेना चाहिए कि तूने 1 साल में ये या फिर 6 महीने में ये पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा करना है, लोगों को पोजेशन देना है, और जो फार्मर्स थे उनको तुझे 99 इयर्स का लीज एक्सटेंड करना होगा, उनके साथ री कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और जो फार्मर्स थे जो भी अगर वो नहीं चाहते हैं इसके साथ एग्रीमेंट करना, तो उनको एक ऑल्टरनेट लैंड दिया जाए, सैंक्शन किया जाए, और उसका जो भुगताना है ये बिल्डर करेगा। Right, correct. Rajeshri correctly said. Anything, हाँ, Joshi? एक और चीज है कि अभी ये अमरापाली ग्रुप क्या बोल रहा था कि हमने फार्मर्स को अगर अभी तक पैसे नहीं दिए, लोन हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम ओसीसीसी नहीं देंगे, ठीक है। तो रिगार्डिंग दिस they should be liable to issue OCCC even if they have not paid the dues to the farmers, क्योंकि होम बायर का मेन प्रायोरिटी है इसलिए। Right. The home buyers here is main priority because why? because उन्होंने तो अच्छे इंटेंशन से परचेज किया ना, कि अपना मिलेगा मुझे, मैं और सारे सेटिंग्स उसमें लगा दिए,
अगर वो कंपनी ने उसके सेविंग्स कहीं और यूज कर दे एंड ही इज एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ इट, तो बेचारे व्हाई दे शुड सफर? हु इज सफरिंग? द होम बायर्स एंड द फार्मर्स आल्सो. So Yeah. there is a whole, मतलब इस पूरे चक्कर चक्कर में you can see it's an abstract shot, opening shot भी है लेकिन थोड़ा abstract भी है. वाया वाया Yeah. वाया वाया करके उन्होंने एंटेंगल करने की कोशिश की और एंटेंगल्ड में एंटेंगल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की और जहाँ जिसमें से कोई भी ना निकल सके. तो बेचारा एकदम स्मार्टली किया उसने. smartly किया. और इसमें सब एक दूसरे को ब्लेम करते Blame रहेंगे कर रहे अगर हैं. और ये ब्लेम, भी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कल ये होम बायर्स जाते भी है कन्वेंस के लिए तो उनके नाम पे हो नहीं सकता. वाई? बिकॉज इट इज 99 ईयर्स ऑफ लैंड है, ये नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको परचेस करना पड़ेगा. वो जितने भी फार्मर्स है इसमें, उनको मना के, उनको पर्सनली जाके मनाना पड़ेगा, उनको पैसे देना पड़ेगा, उनसे लेना पड़ेगा, फिर जाके वो बिल्डर के नाम होगा और बिल्डर इनके नाम पे करेगा. So that is again, it's very complex situation. So court also shall consider that कि जो farmers थे उनको एक separate land allot करना चाहिए. जितना भी उन्होंने बिल्डर को दिया उससे 135 मीटर स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के उनको देना चाहिए as per the rule. और उसके जो पैसे हैं वो तो बिल्डर ही देगा. राइट राइट. अभी है ना कुछ मेरे पास एनीबडी एनीथिंग मानसी वांट्स टू से? नो. एक और अभी चीज है मैं बताऊं. बोलो. ये अभी जैसे यहाँ पे मुंबई में रेरा वगैरह ये सब है, फिर ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स है वो डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड वगैरह करते हैं, पर अभी महाराष्ट्र के बाहर जो छोटे छोटे सिटीज है वहां पे कैसे चल रहा है ना, जैसे मैंने देखा है फर्स्ट पर्सन से कि जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मली सपोज 30 लाख में बेच रहे हैं, ठीक है, तो ऑन डॉक्यूमेंट्स वो सिर्फ 5 लाख का बेचते हैं, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट सारा क्लियर होता है, बट बाकी सब वो बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं ना वैसे टाइप से चलता है, तो यहाँ पे तो वो सब पॉसिबल भी नहीं है. Right. नहीं, और in many cases if you have seen the old you must be knowing first पहले पहले extortion के cases बहुत सारे आते थे. So what is this extortion cases? These were against the builders only, क्योंकि बिल्डर लोग इतना कमाए खाए बैठे रहते थे. अभी थोड़ा कम किया है क्योंकि मुंबई पुलिस ने उसके ऊपर काफी सारा वर्क किया, इसलिए जो दादागिरी और जो गुंडागिरी जो पहले चलती थी. You must have seen this movie also, ना, shoot out at लोखंडवाला. Yeah. That person Maria Doles, he was actually there. वो काफी साल पहले था and he was extortion में ही उसका काफी सारा हाथ था. काफी सारे बिल्डर्स को गोली मार दी गई है. इनफैक्ट where I was working उनके भाई को भी ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई थी. क्योंकि उस वक्त ये सब चलता था. अभी काफी कम हो गया है, काफी कम हो गया. सो इन बिल्डर लाइन जिससे जितना दिखता है ना कि अच्छा है, पैसे है, लेकिन उतना ही उसमें खतरा भी है. हाँ, क्योंकि वही कितना भी रूल्स वगैरह कुछ भी बना लो, कुछ लोग होते हैं जो बीच में से रास्ता ढूंढ के करते ही है, पैसा कमाते ही है. पैसा कमाते ही है. तो कितना भी हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट, कितना भी तुम लोग करो इट इज नॉट सेफ. क्यों? क्योंकि इसमें सब लोग करप्टेड है. और मिनिस्टर से लेकर, यू मस्ट हैव सीन इन मेनी मूवीज आल्सो, मिनिस्टर्स, बिल्डर, सब लोग एक साथ आ जाते हैं कुछ में. नाउ इफ यू विल बी सरप्राइज. अभी मैंने जितना डिस्कस किया, यू मस्ट बी अवेयर कि क्या क्या बिल्डिंग जाते हुए चेक करना पड़ता, देखना पड़ता है. ओके, यू गॉट दैट अवेयरनेस, राइट? तो वैसे ही आजकल इवन यू हैव दैट स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर. एनीबडी हैव हर्ड स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर? हाँ. स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर पता होगा ना आपको? यस. तो वो स्टैम्प ड्यूटी रेडी रेकनर मीन्स क्या रहता है कि अपनी प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी के बीएमसी के इसमें क्या वैल्यू है. ओके, बाजार भाव के अनुसार अभी करंट रेट कितना है. हम बिल्डर अपने से एक अमाउंट ले लेता है. ओके, लेकिन वो एक्चुअल बाजार मूल्य नहीं है उसका. जो बीएमसी बताती है वो बाजार मूल्य है. उसके ऑलमोस्ट 20 to 30% ही बिल्डर मांग सकते. ओके,
ज्यादा है। वाई? बिकॉज उसका सुपर बिल्डअप ये सब चीज रहता है, लेकिन ये सब हम लोग देखते नहीं है बेचारे, जो हम लोग को मांगता है देन वी हैव नेगोशिएशन, हम्म। लेकिन दे देते हैं। लेकिन देयर इज दिस ऑल्सो कि इसके ऊपर ज्यादा वो मांग ही नहीं सकता, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें वो क्वेश्चन बताना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो जो स्टैम्प ड्यूटी रेक्टर में जो रेट्स जो डालते हैं ना, वो भी आजकल बिल्डर लोग खरीदी करते हैं म्यूनसिपालिटी को पे करके। ये मैं खुद टू एनीबडी, लेकिन ये होता है काफी लेवल पर होता है, वो पता भी नहीं चलता है अपने को। ओके, सो व्हाई टू इन्फ्लेट द रेट्स, कभी कभी डिफ्लेट भी किए जाते हैं। सो दैट इफ यू आई एम गोइंग टू, मतलब मेरा लॉयरी आई विल बी गोइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो मैं करूंगी तो इसमें ये ज्यादा, क्योंकि इतने साल से वो, तो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दैट नॉलेज। बट आई थॉट आई विल शेयर विथ यू ऑल्सो, ताकि आप लोग को भी एटलीस्ट कहीं पे परचेस करने के लिए जाओ तो ये सब देखो। तो वो ओके तृप्ति, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। एक्चुअली केस है, हाँ बहुत पुरानी चौल है। हाँ लाइक मेरे फ्रेंड की है। तो हाँ जो पहले जो वो चौल का ओनर था, उसने वो जो कंज्यूमर आई मीन जो भी लोग थे वहाँ पे टेनेंट जो बाय किए वो हाउस, हाँ तो उन्होंने घर का तो पेपर है, हम्म, बट वो जो रह रहे हैं ना, जिसने लिया है, उनके नाम नहीं है। चौल का। हाँ, वो जो घर पे जो जिनने खरीदा है, तो हाँ वो उनका नाम नहीं है, बट हाँ घर उनका है, मतलब पेपर्स है उनके पास पूरा। हाँ। अभी वो जो पुराना बिल्डर था उसने नए बिल्डर को बेच दिया ये प्रॉपर्टी। ओके। और वो अभी जो नया बिल्डर आया है तो उसको ये जो चौल है वो बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट के लिए उसको यूज करना है। अब वो हाँ बोल रहा है कि पेपर तो है तुम्हारे, बट तुम्हारे नाम नहीं है जिसने खरीदा है। ये सेम पता है, मैं गोरेगांव में रहती थी, नागरी निवारा करके है ना वहां पे। तो वहां हाँ। तो पे ये जो इसमें ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इसमें डिक्लेरेशन सूट डालना होगा इसलिए। नहीं नहीं, इसमें पहले तो ये कई कई जगह पे रहता है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर उसके नाम पे है। नहीं नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर वो चौल में जो रह रहा है उसके नाम पे है क्या? ये तो मैंने पूछा नहीं। हमारे यहाँ पे पता है कैसा रूल था कि जो फर्स्ट ओनर है ना हमेशा उसी के नाम पे रहेगा, बाकी मेन हाँ, ओनर चेंज होता जाएगा, ऐसा था रूल। नहीं, नहीं नहीं, ये अलग है। अच्छा। इसमें अलग, ये केस में अलग है। इसमें चौल है, चौल के नाम पे उसमें पेपर्स भी है उसके पास, बराबर। हाँ। अभी ये देखना है कि उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर वो चौल के पर्सन के नाम पे है। अगर कितना पेपर, साल हुआ है बाय द वे? मैं बहुत पुरानी है। मतलब नहीं नहीं, उसका लिविंग कितने साल का, स्टे कितने साल का था, पोजीशन? एक्चुअली स्टे का भी नहीं पता मुझे, एक्चुअली इतना ज्यादा पूरा नॉलेज नहीं है, बस मेरे को ये एक ही, याद आया है। नहीं एक ही अगर है, नहीं बोलो बोलो। अगर 12 इयर्स होगा उसका स्टे हम्म। उस घर में, और ड्यूरिंग दैट टाइम उसके पास कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, या फिर कोई लेटर उसके गांव से आया हुआ उसके उसके पास होगा आया हुआ, ये अगर प्रूफ होगा, तो वो एडवर्स पोजेशन मांग सकता है इफ ही हैज लिव्ड फॉर 12 इयर्स इन दैट फ्लैट। नहीं, बट अभी कैसा है कि उन्होंने अभी जो नया बिल्डर आया ना, तो उससे पहले उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और वो जो घर है ना उन्होंने रेंट पे दे दिया, तो वो काफी टाइम से वो रेंट पे ही चल रहा था। हाँ, रेंट पे भी था, पर उन्होंने रेंट का कुछ उसके साथ बनाया होगा हाँ, ना कागज। पेपर एग्रीमेंट ये सब तो है। हाँ, तो फिर हो सकता है एग्रीमेंट भी होगा, और कभी ना कभी उसके कोई सामान मंगाया होगा, या फिर कोई लेटर आया होगा गांव से, या फिर कुछ ना कुछ हाँ, होगा, लोग पहले के करके रखते थे। ऐसे कि रेशन कार्ड। क्या, राइट राइट। बस तो 12 साल का प्रूफ देना है कैसे भी। नहीं नहीं, हाँ, कि मैं रहता था। कैसे होता है मानसी, अभी अब जो नया बिल्डर है, ही हम्म। इज रेडी टू गिव रीडेवलप द प्रॉपर्टी। सॉरी, मैंने सुना नहीं। जो नया बिल्डर आया है, ही इज हाँ। रेडी टू रीडेवलप द प्रॉपर्टी एंड गिव दिस पीपल अ सेकंड होम। नो, एक्चुअली वो थोड़ा वो बोल रहा है कि तुम ये छोड़ दो, मतलब प्रॉपर्टी पैसा निकाल पैसे रहा है वो। निकाल। निकाल रहा है। और वहाँ पे एक्चुअली एक का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ हाँ पे 20-25 जो है ना,
सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी है। तो दे शुड तो अभी वही चल रहा है कि उन्होंने कोई लॉयर हायर किया है यस यस एंड ये सब डाला है। यस और आई थिंक सीआरपीसी के अंडर ही जाता है ये, आई थिंक सेक्शन 17 में है ये, क्योंकि मेरे इसमें काफी सारे लोगों का ये ऐसे रीडेवलपमेंट के केस में जब बिल्डर देता नहीं है ओके पोजेशन, तो आई थिंक सेक्शन 17 ऑफ सीआरपीसी, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बता सकती हूँ बाद में, तो उसके अंडर ये सब मैटर्स आते हैं। सो इन दिस केस उनको एक लीगल केस बना के रखनी है ओके, लीगल केस वो प्रोसीड बना के उसके अंदर सारे कंटेंशंस, इनफैक्ट उसके पास वो पागड़ी का वो पागड़ी सिस्टम में ही हो गया ना तो वो पागड़ी सिस्टम का जो मेंटेनेंस के बिल्स वो पे करता होगा बिल्डर को, वो मैच करने पड़ेंगे, शोइंग दैट कि आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। कुछ तो पुरावा होना चाहिए, जैसे बोला लाइट बिल, पैन कार्ड, जैसे ये राजेश्री ने भी बताया, ये सब प्रूफ वो लीगल जब हम लोग सबमिट करेंगे कोर्ट में तो ये सब प्रूफ भी मांगेगा, तो ये जमा करके प्रॉपर एक पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, या तो सब लोग के साथ में ये करो या फिर इंडिविजुअली करो, इट डिपेंड्स अपॉन द ईच उनके इससे, लेकिन यही सबसे बेस्ट उनके लिए ओपिनियन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है लीगल। तो वो कोर्ट में डालोगे ना तो कोर्ट विल क्या करेगी, कोर्ट विल ब्रिंग अ स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अनलेस एंड अनटिल कि इन लोग को इनका हक नहीं मिलता है, तो जब तक ये स्टे रहेगा वो कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्डर एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, मैंने थिंकिंग, और ये प्रॉपर्टी वो हथियाने के चक्कर में लाइक मैं लोगों को कुछ दूं भी नहीं और फ्री में मिल जाए। वो काफी बॉम्बे में 100 काफी सारे ये जो सब जगह है, हाँ। क्योंकि पहले पागड़ी सिस्टम था, पागड़ी सिस्टम इज नथिंग बट ओनरशिप फ्लैट्स नहीं, पागड़ी सिस्टम उसमें जब बेचते हैं तो ओनर को पैसा मिलता है, 1/3 ओनर को देना पड़ता है और पैसा आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब बेचने जाओगे वो पर्टिकुलर फ्लैट और अगर ओनरशिप में नहीं है, पागड़ी सिस्टम में है, तो उसमें 1/3 पैसा, अगर किसी का प्रॉपर्टी आया तो उसका 1/3 ओनर को जाता है, उसका उतना किसको मिलता है, किसको, पार्टी को। तो मतलब वो प्रॉपर्टी ओनरशिप में है ही नहीं। तो फर्स्ट इसलिए सबर्बन में बाद में क्या हुआ, सबर्बन एरिया में बिल्डिंग चालू हो गया, फिर पागड़ी से धीरे धीरे हट गया, लेकिन अभी भी जो जुड़े बिल्डिंग देखिए काफी सिस्टम में रहने के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए लेकिन काफी सारे ये है जैसे इसने बताया अंडर सेक्शन 18 एडवांस पोजेशन ओके, तो अगर के ऊपर रहते हो राइट एंड यू आर पेइंग प्रॉपर मेंटेनेंस, और फिर उसके बाद मरने के बाद कोई आपके जिसके नाम पे है वो प्रॉपर्टी उसमें कैन भी ट्रांसफर करो, वैसा भी है तो आप बाद में देख लेना, उसमें भी ट्रांसफरेशन है, लेकिन अभी के लिए ये चीज के लिए अगर वो हटाने के इसमें है तो पहले उसमें लीगल एक्शन लेनी चाहिए ओके, बट उसके लिए सारे पुराने मतलब सारे एविडेंस कलेक्ट करो ओके, वो पकड़ के उसमें फाइल कर दो, ताकि जब अगर कोर्ट में ये लिटिगेशन चल रहा है तब तक वो बिल्डर चेंज नहीं कर पाएगा। टेम्पररी तुमको थोड़ा जंक्शन जैसे मिल जाएगा टेम्पररी, बट वो फ्लैट का जो फ्लैट है बट उस जो ओनर से सॉरी जो है तो उनका नाम कैसे पेपर पे आएगा, उन्होंने बाई किया है पेपर पे आएगा, मतलब वो वहाँ पे रहते हैं, उनका मेंटेनेंस का बिल होगा ना हमारे पास पागड़ी सिस्टम का होगा ना वो। और दूसरा मतलब पहले भी कुछ में ना टेनेंट उसको बोलते हैं टेनेंसी राइट्स, इफ यू read the book टेनेंसी राइट्स, जैसे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का राइट्स का बुक रहता है वैसे बायलॉज रहता है टेनेंसी राइट्स का, उसमें पढ़ोगे ना तो इसमें ही एग्रीमेंट होता है टेनेंसी राइट्स का, वो बनाया है टेनेंसी राइट्स का के साथ जो ओनर है साथ पहले उसको बोलो
कि घर छोड़े नहीं, पोजीशन बिल्कुल कोई भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं है। इसलिए वो जो रेंट पे रहते थे ना, तो उन्होंने रेंट वाले को निकाल दिया। मतलब वो शिफ्ट वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और वो जो फैमिली जिसका घर है उसमें से एक मेंबर वहाँ जाके रह रहा है, क्योंकि वो है मेरा घर है तो मैं रह रहा हूँ, पोजीशन में है। राइट ही डिड, एंड सेकंडली जैसे मैंने कहा वैसे फॉलो इमीडिएटली कर दो, ताकि यार राइट मैंने प्रोग्राम किया है, नहीं तो ये ऐसे तुम लोग को देंगे पीनट्स, नेक्स्ट बिल्डर सामने से बोलता है कि तुम मुझे इतना पैसा दो तो मैं ये नहीं करूँगा, मतलब मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। ऐसे भी होता है, एक्सटॉर्शन है ये तो। हाँ, वो जो बोलता है कि हाफ पैसा मुझे इतना दो, मैं तुम्हारा मतलब पेपर ये करके देता हूँ। आप क्या करो, 2-3 पिटीशन डालना पड़ेगा। सबसे पहला एक तो वो लेंडर के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन केस डालना होगा, क्रिमिनल केस। सेकंड थिंग, सिविल कोर्ट में जाकर एडवर्स पोजीशन मांग लो, एक लगा लो इंटरव्यूएशन में, और इंटरव्यूएशन के मांगने के बाद आपको डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा कि आई एम द ओनर, कि आपका टाइटल मिल जाएगा डिक्लेरेशन सूट में। जब मैंने डेली लगे केसेस थे तो उसमें भी यही हुआ था, सारी चीज हमने अटैच किए थे और कोर्ट में जाके सबमिट कर दिया था। तब तक थोड़ा बहुत एटलीस्ट निकल गया। फिर जैसे जैसे कोर्ट का प्रोसीजर बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक चीज निकलती जाती है, फिर वो कोर्ट मांगते रहेंगे ये करे वो करे, बट इन केसेस 90 वो कह रहा है उसके अगेंस्ट चार्ज न हो। अगर उसके अगेंस्ट जरा सा भी कोई क्रिमिनल चार्ज हो तो फिर वो पलटी हो सकता है, बट लाइक अ गुड ह्यूमन से तो उनके इसमें हक में मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये अगर कलेक्टिवली करे ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्ट तो ये भी समझेगा कि ये सब लोगों के साथ बिल्डर ये कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। चलो एक आदमी रहता तो अलग बात है, वो झूठ बोल सकता था, बट इतने सारे लोग और इतने सारे पुरावे भी होंगे उनके अगेंस्ट, तो कोर्ट में गिव गुड डिसीजन। Okay, I will just discuss with this thing with. जहाँ पे भी जिसके पास जाओगे ना जिसके उसके लॉयर के पास भी बैठो, शायद एक दो मिनट हम लोग मुझे बोला लेकिन फिर भी वो और भी बताएगा जो रेगुलर बेसिस पे करता है ये चीज, तो वैसे वो मोस्टली होना चाहिए ऐसा। तो एटलीस्ट अपने डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसके एरिया का आपको लगभग फ्लैट मिल ही जाएगा। ओके मैं ना उसका कंक्लूजन फटाफट बता देती हूँ आप लोग को, ताकि कंक्लूड सुप्रीम कोर्ट में तो वो आपको पता चलेगा। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट the Supreme Court ordered a forensic audit to look into the affairs of Amrapali Group. The forensic report confirmed that there had been a diversion of funds by the group by incorporating Shell Dumping Company. The promoters had created a web of तृप्ति इको हो रहा है, वॉइस इको हो रहा है। एक सेकंड। अभी देखो, so that the promoter had created a web of more than 150 companies for routing of funds and creating assets. Home buyers along with the loan from the bank were diverted to other companies. Such funds were used by the promoters to acquire personal assets, properties and applied towards other business ventures.
The Supreme Court also observed that the mortgage created in favor of the lenders required a NOC from the authority. जो mortgage उन्होंने create किया था ना उन लोग को loan पे देके, तो वो पे देखे तो it was a kind of a mortgage ही किया था loan देके, जो फ्लैट भी mortgage की तरफ से जैसे ही रख दिया था उन्होंने from the authorities which was issued subject to certain conditions such as full timely payment of fees, rent, premium जो भी है to the authorities. The court held that in eyes of law no valid mortgage has been created in favor of the bank. On account of the condition the NOC नहीं no objection certificate भी लेना पड़ता है, ये बहुत important point है। वो जो जब आप OC लेते हो OC के बाद possession भी रहने के लिए भी जाते हो तो बिल्डर से NOC लेना पड़ता है सब ताकि for possession purpose की builder doesn't have possession of you staying in that property. Remember this point क्योंकि ये काफी important है जब आप purchase करने जाओगे. And for transferring the electricity meter also you require an NOC from the builder कि तो भी जाके electricity meter आपका transfer होगा. Okay? So these 2 points you also keep it in your mind. Okay, now the Supreme Court decision, the light of observation made and finding of the forensic report, the apex court issued the following order. The RERA registration of various projects, the books were cancelled, and the national building construction that construction was assigned the task of completing the project किसी और को दे दिया करने के लिए और अम्रपाली के रेरा रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल हो गया कर दिया. The court receiver had been given the rights of the lessee and its rights to execute the tri-party agreement and ensure that the title is passed on to the home buyers free from any encumbrance. Okay? तो ये एक अच्छी कोर्ट रिसीवर को ही बिठा दिया कोर्ट ने क्या किया, ये कोर्ट को भी समझ में उन्होंने कोर्ट रिसीवर को बिठा दिया ऐसे केसेस में और खास करके कोर्ट खुद इन्वॉल्व हो जाती है और उसको रिसीवर को बिठा देती है और वो एग्रीमेंट वगैरह सब मैनेज करती है. Okay, the Supreme Court further directed that the authorities and the banks will have to recover their dues from other properties and assets of the group which had been attached. Okay, the home buyer had been directed to deposit the outstanding amount as per the payment schedule. Normal building का जो payment schedules रहते हैं वो उनको properly clear करने हैं, इसे बिना ही उन्होंने home buyer से बोला. Under the builder-buyer agreement with the promoter-developer in a court-administered bank account within 3 months, the amount deposited by the home buyer will be disbursed by the court order as per the state-wise completion. जो भी state-wise completion करेंगे होगा वैसे वो home buyer payment करते जाएगा. So these are all the decision which were. Further, the court advised appropriate action to be taken against the leaseholders of similar projects not only in Noida and Greater Noida but in other cities as well. Central government ministry and state government agencies have been further directed to ensure completion of other projects in a time-bound manner as completed in RERA and ensure that the home buyers are not defrauded. Lastly, the Noida and Greater Noida authorities were further directed to issue completion certificate and registered conveyance deed to be executed within 1 month concerning the project where the home buyers were already residing. So, this is major relief to thousands of home buyers affected of the registration of Amravali cluster. Underneath reality, the RERA and directed by the NBCC taken over its unfinished construction count in Greater Noida and Noida. The bench found that Amravali cluster had siphoned off home buyers' cash with the convenience of bigger Noida and Noida authorities. Okay, and the court had directed the Social Control Board of Directors to initiate action in the need to bar the Cash Wash Act and Exchange Management Act against Amrapali directors and authorities and update the court with the progress of the court with periodic reports. तो जो हमने डिस्कस किया वही सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया और उन्होंने उसका लाइसेंस रेरा का जो अपना इश्यू था लास्ट में कि इश्यू था रेरा एक्ट के अंदर इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कि नहीं, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, कर दिया इनफैक्ट. एंड इट वाज अ बिग रिलीफ
to the home buyers. This was one of the biggest case जिसके वजह से there was a release to most of the home buyers in Noida and in other cities. Because of this case हम लोग को भी एक प्रकार एक जो ये जो बिल्डर्स और होम बायर्स का जो हमेशा लिटिगेशंस और ये सब चलता है, तो ये केस के वजह से काफी हद तक रुक गया. ओके, हेलो, Okay, Has everybody understood? Yes, yes. तो ये तो ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं. तो ये ऐसे रेरा के एक्ट के अंदर और क्या करना चाहिए और क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग आजू बाजू में तो पता रहता ही है, अपने को पता चलता है, कहीं अपने साथ भी ना हो जाए. तो इट्स बेटर टू बी अवेयर. तो ये केस के ऊपर हम लोग को पता चल सकता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए व्हेन यू गो टू बाय फ्लैट फ्रॉम अ बिल्डर या फिर रीडेवलपमेंट के केस में. कल आपकी बिल्डिंग भी अगर आप काफी पुराने बिल्डिंग्स में रह सको कि 35 years इन द लिमिट ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद रीडेवलपमेंट में वो जा सकती है अप टू 35 years. 30 to 35 के आपको उसकी एज हो गई ना, उसके बाद हम लोग रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं. बट रीडेवलपमेंट के केसेस में भी ये बिल्डर लोग कभी कभी फंसाने की कोशिश करते हैं. या फिर चौल और बागड़ी सिस्टम में क्या रहता है मालूम है, चौल और इसका ओनर जो रहता है वो कभी कभी बेच देता है. सेकेंडली जो लोग वहाँ पे जो लैंड में कभी अभी आप इलीगली रह रहे हैं, पहले तो उन लोग को राइट नहीं रहता है, बराबर. भले ही 12 साल का, ये दो चीज अलग अलग है. एक तो पहले तो पागड़ी वाला जो हम लोग ने अभी मानसी जी ने जो केस बताया वो वाला. एक दूसरा एक केस रहता है कि इलीगल लैंड में ही लोग काफी साल से रह रहे हैं. ओके, काफी बचपन से और कोई पूछने वाला नहीं है. तो वैसे भी केसेस रहते हैं कि उसमें भी अगर अथॉरिटी ने ध्यान नहीं दिया है तब भी एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी का ध्यान नहीं था, अथॉरिटी इज इन फॉल्ट. तो उसमें भी ही अगर लाइट और ये सब उनके नाम पे चढ़ता है तो उसमें भी उनके राइट्स रहता है. लेकिन उनके राइट्स उतने कम जरूरी नहीं है कभी पूरे मिले, क्योंकि वो इलीगली पहले तो इलीगली रह रहे हैं. तो इसमें काफी आप बिल्डर लोगों को ये इन लोगों को यहाँ से हटा दिया, इन लोगों को झोपड़पट्टी हटा दिया. आपने सुनने में आया होगा पेपर में और ये झोपड़पट्टी हटा दी, फिर ये हटा दिया, वो हटा दिया. तो क्योंकि उन्होंने इलीगली खुद ही बांधा है. लेकिन उसमें भी काफी सारे ये रहते हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं पॉइंट तो जिसमें होम बायर जो वहाँ पे रहने वाला है टेनेंट, तो टेनेंट ही बोलते हैं उसको, तो उसमें भी कुछ न कुछ राइट्स रहते हैं. तो वो आप ध्यान से देखोगे ना तो उसको अपने केस फाइट कर सकते हैं. Okay, so this is what I wanted. Today's case was to make you aware or if you be about the property related matters also. So what is all your opinion? No. Sorry? मतलब घर बाय करने से पहले ये सब देखो, लीगल फॉर्मेलिटी से चेक करो, लॉयर्स एडवाइस लो ये सब. एंड इन दिस केस का ओपिनियन आप जब लिखोगे कंक्लूड करोगे तो ये सब डाल देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर जो हमने डिस्कस किया वो पॉइंट मैंने आपको वर्ड फाइल में भेज दिया है. उसके अगेंस्ट आपका ओपिनियन थोड़ा बहुत जितना समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल द अथॉरिटी इज एट फॉल्ट. Secondly, the bank is also at fault for how they granted this permission. Thirdly, RERA Act should be cancelled because if he is declared as insolvent, if he is not able to fulfill what he wants, what he has, what his actual MOA talks. You must be knowing कि MOA Memorandum of Association और अपना Article of Association रहता है कंपनीज का. तो अगर उसके थ्रू अगर वो उसका जो एक्चुअल बिजनेस है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है तो यू कैन हैव एन अवेलेबल केस आल्सो फॉर हिम. तो उसके चलते वो पनिश भी हो सकता है. ओके, तो अगर वो ये सब कर ही नहीं रहा है तो उसको रेरा पर ये रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा. एंड लास्टली होम बायर्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. लास्ट क्वेश्चन की फर्स्ट प्रायोरिटी, सो दे मस्ट बी गिवन बी रिलीफ. व्हाई? बिकॉज दे ऑल देयर अर्निंग्स दे देयर हार्ड money they have invested to buy that property.
These all concern opinions you can put down in this particular case. Okay. Yes. Yeah. So today you must be aware of all the facts, mostly due to this I mean particular case. There is one more case but उसके लिए अभी भी अच्छा केस है, लेकिन ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल अपने को घर की तो जरूरत रहती है और कभी बाहर ये पता नहीं चलता है, इसलिए ये सब बातें देखोगे ना तो ये सब चीज में तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितने और सोसाइटी मेंटल्स में भी काफी कुछ रहता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं सिर्फ नहीं रहता है। तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस केस और इसके अलावा भी जो केसेस जो समरी सूट फाइल किए जा रहे हैं, जो ऐसे केसेस में भी रहते हैं, बिल्डर के अगेंस्ट वाले भी रहते हैं, तो यू कैन हैव इफ यू वांट ग्रोथ इन दैट तो इसमें भी जा सकते हैं। So today I wanted to make you aware also, that's why I took such a case ताकि maybe some of you also be confused. So yeah. Okay. So that was all. अच्छा कल तो नहीं है ना? ना कल नहीं है, परसों भी नहीं। So as देखो भी राजश्री जोशी you are going to come up with some case, और अगर मुझे लग रहा है तो मैं भी देखती हूँ कोई छोटा सा केस अगर फटाफट बोलने के लिए, या फिर नहीं परसों तो मैं परसों यू आर देयर, सॉरी राजश्री इज देयर ना परसों। देखो ओके ऑन सैटरडे थिंग का देख लो कैसे करना है, बता दो कि क्या टाइम वगैरह रखना है। अगर मॉर्निंग में भी सैटरडे है ना तो सैटरडे में टू मॉर्निंग में भी चल जाएगा आई थिंक, ही रहते हैं ये तो लास्ट सेशन होगा ना फिफ्थ वाला सैटरडे को है। Okay. Yeah. Tomorrow is holiday and also I'm going to. Yeah. Okay. चलो then have a good day. Yeah. Thank you. Bye.